السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی تاریخ میں بہت بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ قبیلہ قریش کے عزت دار اور بہادر نوجوانوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اسے چھپایا نہیں بلکہ کھلے طور پر اپنے اسلام کا اعلان کیا اور سب مسلمانوں کو ساتھ لے کر حرم شریف میں جا کر نماز پڑھی۔ اتنی ضرورت اور بے خوفی ہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل یا سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا۔ تاریخ میں انہوں نے فاروق اعظم کے لقب سے شہرت پائی۔ یہ لقب ملنے سے پہلے انہیں عمر بن خطاب ہی کہا جاتا تھا۔ قریش کے دوسرے لوگوں کی طرح ان کا پیشہ بھی تجارت تھا اور وہ کبھی کبھی اس سلسلے میں دوسرے ملکوں کے سفر کرتے رہتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے کئی سال پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ مال لے کر مکہ سے ملک شام گئے۔ قافلے میں قریش کے کئی اور بڑے سردار بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ شام کے سب سے بڑے شہر دمشق گیا اور وہاں اپنا مال بیچ کر واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد آیا کہ ان کی ایک رشتہ دار خاتون نے انہیں کچھ سونا دیا تھا کہ اسے بیچ کر اس کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لیتے آئے۔ انہوں نے اپنے قافلہ کے ساتھیوں سے کہا کہ میں فلاں عورت تک کام کرنے واپس دمشق جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ یہ کام کر کے جلد واپس آ جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دمشق واپس گئے تو بازار بند ہو چکے تھے۔ مجبوری میں وہ ایک سرائے میں ٹھہر گئے اور تھکاوٹ کی وجہ سے سو بھی گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ کا ایک بندہ سرائے میں آیا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جگایا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ معلوم نہیں یہ نیک آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہلے سے جانتا تھا۔ حضرت عمر پہلے بھی کئی بار دمشق آ چکے تھے یا ان کے والد خطاب سے اس کی کوئی جان پہچان تھی۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی خاطر مدارت کی۔ کھانا کھا کر وہ تو سو گئے اور ان کا میزبان رات بھر عبادت کرتا رہا۔ صبح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوئے تو ان کے میزبان نے کہا کہ اکیلے بازار نہ جانا، بازار میں لٹیرے اکثر مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، میرے ساتھ چلنا۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا کیونکہ رات بھر وہ جاگتا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور اکیلے بازار چلے گئے۔ بازار جا کر دیکھا تو بازار بند تھا۔ وہ بازار کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ایک عیسائی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے اپنے نوکروں کو حکم دیا، اس شخص کو پکڑ لو، یہ گرجے کا کام بہت اچھی طریقے سے کر لے گا۔ پادری کے نوکروں نے ان کو پکڑ لیا اور ایک پرانے گرجے میں لے گئے۔ پادری نے ان کو ایک ہتھوڑا دیا اور ان کو گرجے کی دیوار توڑنے پر لگا دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس کی جگہ نیا گرجا بنوانا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر کام کرتے رہے، پھر شام کو جا کر چھٹی ملی اور وہ تھکے ہارے سرائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پہلے دن والا نیک آدمی پھر آیا اور ان سے پوچھا، آپ کدھر چلے گئے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے سارا قصہ سنایا تو وہ انہیں پھر اپنے گھر لے گیا اور ان کی بڑی خاطر مدارت کی اور انہیں تاکید کی کہ کل بازار جاتے وقت مجھے ساتھ لے جانا۔ اس کے بعد وہ عبادت میں مشغول ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سو گئے۔ دوسرے دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوئے تو اپنے نیک میزبان کو سوتے پایا۔ انہوں نے اب کی بار بھی اس کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور اکیلے بازار چلے گئے۔ اتفاق سے پھر وہی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر لے گیا۔ ان کو غصہ بہت آیا لیکن کیا کرتے، غیر ملک میں وہ اکیلے تھے اور کوئی ہتھیار بھی پاس نہیں تھا۔ دوسری طرف پادری کے 7-8 نوکر بھی تھے اور سب ہتھیار بند تھے۔ پہلے دن کی طرح حضرت عمر ہتھوڑے کے ساتھ گرجے کی دیوار توڑتے رہے۔ جب دھوپ تیز ہوئی تو پادری اور اس کے نوکروں نے کام میں مشغول دیکھ کر چلے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیوار کے سائے میں دم لینے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہ پادری گھوڑے پر سوار چپکے سے آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر ایک کوڑا مارا اور کہا، ہم سب گھر گئے اور تو نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو صبر کرنے کی تاب نہ رہی۔ انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔
हर तरफ सन्नाटा था। उन्होंने पादरी को घोड़े से खींचकर नीचे गिरा लिया और उसके सर पर हथौड़ा मारना शुरू कर दिया। वो बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए न पहुंचा। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने टूटी हुई दीवार का एक भारी टुकड़ा उठाकर उसके सर पर मारा। वो पहले ही जख्मी था, अब उसने दम तोड़ दिया। उसको मरते देख हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तेज़ी से भाग खड़े हुए और जिस रास्ते से वो दमिश्क आए थे वो रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते पर चल पड़े। शहर से काफ़ी दूर उन्हें खच्चर पर सवार एक रूमी मिला और उनके साथ चलने लगा। वो कुछ बातें करने लगा। उसने अचानक अपनी तलवार पर हाथ डाला। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि वो उन पर वार करना चाहता है। उन्होंने फ़ौरन उसे खच्चर से खींच लिया और उससे तलवार छीनकर उसका एक ही बार में काम तमाम कर दिया। फिर उसके खच्चर पर सवार होकर आगे चल दिए। उसके बाद क्या हुआ है इसका हाल खुद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस तरह बयां किया है। उस जगह से रवाना होकर मैं गिरजाघर के पास पहुंचा। यहाँ ईसाइयों की एक जमात रहती थी। मैं गिरजे के अंदर दाखिल हुआ तो गिरजे में रहने वाले सब लोग मेरे इधर उधर जमा हो गए और मुझसे मेरे हालात के बारे में पूछने लगे। फिर वो अपने ईसाई आलिम के पास गए और उसे मेरे गिरजे में आने की खबर दी। वो ईसाई आलिम मेरे पास आया, मुझे निहायत गौर से देखने के बाद कहने लगा, ऐसा मालूम होता है कि तुम्हें किसी चीज़ का खौफ है। मैंने कहा, तुमने कैसे अंदाज़ा किया कि मुझे किसी चीज़ का खौफ है? उसने मेरे सवाल को टाल दिया और कहा, आप जब तक चाहे यहाँ ठहरे, आपको यहाँ किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि आप हमारी हिफाजत में हैं। फिर उस ईसाई आलिम ने मुझे अपने घर में मेहमान की तरह रखा और मेरी खातिर मदारत की। फिर पूछा, आप कौन हैं? मैंने उसे बताया कि मैं मक्का का रहने वाला हूँ और कबीले कुरैश से ताल्लुक़ है। एक तिजारती काफ़िले के साथ शाम आया था। तिजारत का माल बेचने के बाद अपने एक ज़रूरी काम के लिए मुझे अपने काफ़िले से जुदा होना पड़ा। अब मैं वतन वापस जा रहा हूँ। रास्ता भटक कर इधर आ निकला हूँ। ईसाई आलिम मुझे गौर से देखता रहा और बार बार तरह तरह के सवाल करता रहा। मैं उसके यहाँ निहायत आराम से रात बसर की। सुबह को उसने पूछा, आपका इरादा अभी यहाँ ठहरने का है या आगे जाने का है? मैंने कहा, मैं अब आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। यह सुनकर ईसाई आलिम ने अपना शानदार गधा, जो बड़ा खूबसूरत और निहायत तेज़ रफ्तार था, ले आया। उस पर खाने पीने की चीज़ें और कीमती तोहफे रखे। फिर उसने कहा, आप इस गधे पर सवार हो जाएं और चल पड़ें। रास्ते में आपका गुजर किसी ईसाई के मकान के पास होगा तो आपको इस गधे पर सवार देखकर आपकी बेहद ताज़ीम करेगा और आपकी खातिर मदारत में कोई कसर न रखेगा। यह कहकर ईसाई आलिम ने मेरा हाथ पकड़ा और तन्हाई में ले जाकर कहने लगा, ऐ उमर, आप पर मेरा हक वाजिब हो गया। मैंने कहा, बेशक। उसने कहा, आपका ताल्लुक़ एक मुअज़्ज़िज़ कौम से है, मेरी आपसे एक गरज है। मैंने कहा, आप बयान करें। लेकिन हैरत की बात है कि आप जैसा बड़ा आदमी मुझ जैसे परेशान हाल मुसाफिर से कोई गरज रखता हो। उसने बड़े यकीन भरे लहजे में कहा, सुने, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसे अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों का इल्म अता किया है। मैंने आपकी जात में बहुत सी ऐसी निशानियां देखी हैं जो जाहिर करती हैं कि जब एक मुकर्रर मुद्दत पूरी हो जाएगी तो हालात में ज़बरदस्त तब्दीली आएगी। उस वक्त आप हमारे मुल्क के हाकिम बन जाएंगे और यहाँ के सब शहरों में आपका ही हुक्म चलेगा। फिर ईसाई आलिम ने अपनी जेब से दावत कलम और कागज़ निकाली और कहा, मेरी गरज यह है कि आप इस कागज़ पर लिख दें कि इस गिरजे का और इसकी जायदाद पर जजिया और किसी किस्म का हुकूमती महसूल माफ़ होगा। मैं हैरान होकर ईसाई आलिम से कहा, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? उसने कहा, कसम है उस जात की जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल फरमाई, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। आप मेहरबानी फरमाएं और मेरी दरख्वास्त कबूल फरमाएं। मैं ईसाई आलिम की बातों को उसका वहम समझा और जिस तरह उसने कहा उस तरह लिखकर कागज़ उसको दे दिया और गधे पर सवार होकर वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में मुझे कई जगह ईसाइयों की जमातें मिली। उन्होंने मुझे इस गधे पर सवार देखकर मेरी बड़ी खातिर मदारत की। मैं इस तरह जगह जगह ईसाइयों का मेहमान बनता तबूक पहुंच गया। अल्लाह तबारक ताला की शान, जिस तिजारती काफ़िले के साथ मैं गया था वो काफ़ी देर मेरा इंतज़ार करने के बाद उस जगह से चल पड़ा था जहां मैंने उसे छोड़ा था और अब तबूक में एक कुएं के करीब डेरा डाले हुए था। काफ़िले वाले मेरे साथी मुझे देखते ही मेरी तरफ दौड़ पड़े। वो मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, अय इब्ने खत्ताब, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार करते करते बिल्कुल मायूस हो गए तो हमने उस मुकाम से कूच कर दिया जहाँ से तुम वापस दमिश्क गए थे।
मगर तुम्हारे बारे में हम सख्त परेशान थे। यह तो बताओ इतने दिन तुम कहाँ रहे। मैंने वो तमाम हालात बयां किए जो मुझे पेश आए थे, लेकिन ईसाई आलिम से जो मेरी गुफ्तगू हुई थी वो बिल्कुल जाहिर ना की, क्योंकि मैं ईसाई आलिम की बातों को उसका वहम और उसकी अकीदे की कमजोरी समझता था। कुरैश के एक सरदार अबू सुफियान भी उस काफिले में शामिल थे। उन्होंने मुझे उस शानदार गधे पर सवार देखकर कहा, अरे तुम लोग इस नौजवान की इकबाल बंदी तो देखो। इसे किसी ऐसे मैदान में छोड़ दिया जाए जहाँ ना पानी हो और ना सब्ज, फिर भी उसे रिज्क मिल जाएगा। ईसाई आलिम ने रुखसत करते वक्त मुझसे कहा था कि जब मैं अपने साथियों के पास पहुंच जाऊं और गधे की ज़रूरत ना रहे तो इस गधे को वहीं पर छोड़ दूं। मैंने ऐसा ही किया। यह देखकर अबू सुफियान ने कहा, अरे यह तुम क्या कर रहे हो। गधे को ऐसी जगह छोड़ दिया जहां से चोर और दरिंदे अक्सर गुजरते रहते हैं। मैंने कहा कि इसके मालिक ने मुझे ऐसा ही करने की हिदायत की थी, वही इसकी आदतों से ज़्यादा वाकिफ़ है। वहां से रवाना होकर हमारा काफ़िला मक्का पहुंचा। मेरे और ईसाई आलिम के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वो मुझे भुलाए ना भूली थी। पहले तो कई दिन मैं उसे दिल ही दिल में रखा, लेकिन फिर मुझे जब्त ना हो सका और मैंने यह राज अपनी उस रिश्तेदार खातून के सामने जाहिर कर दिया जिसने मुझे सोना दिया था। वो बड़ी अक्लमंद खातून थी। उसने मुझसे कहा, ऐ इब्ने खत्ताब, मैं तुम्हारे बचपन ही से तुम में अच्छी निशानियां देख रही हूँ। तुम जब बहुत छोटे थे तो मैं एक दफ़ा ख्वाब में देखा कि तुम लंबे होते जा रहे हो और तुम्हारा कद इतना लंबा हो गया कि उसने आसमान को छू लिया। यह देखकर मैंने ख्वाब में कहा, अरे यह मेरे बच्चे की क्या हालत है। किसी ने कहा, यह लड़का जल्दी ही दुनिया और आखिरत में भलाई पाने वाला है। जाहिलियत के ज़माने में इस किस्म की बातों का मतलब मेरे समझ में नहीं आता था। मक्का में एक शख्स अहले किताब यहूद और नसारा में से था जो बहुत गुमनाम था। आम लोग तो उससे वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन कुरैश के सरदार उसे पहचानते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन मैं दोपहर के वक्त उसके यहाँ गया और उसके मकान पर पहुंचकर उसे आवाज़ दी, ज़रा दरवाज़ा खोलिए, मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है। उसने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने उससे कहा, मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि इनको आप अपने दिल में राज बना कर रखें और किसी के सामने इसको जाहिर ना करें। उसने ऐसा करने का वादा किया तो मैंने अपने सफ़र के तमाम वाक़यात उसके सामने बयां कर दिए और अपने रिश्तेदार खातून के ख्वाब का जिक्र भी कर दिया। जब मैं अपने गुफ्तगू ख़त्म कर चुका तो उसने कहा, ऐ इब्ने खत्ताब, जिसको तुमने माफ़ी का वादा लिख कर दिया वो इस ज़माने में ईसाइयों का सबसे बड़ा आलिम है और जो कुछ उसने कहा वो सब कुछ सच है और जल्द ही वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। जहाँ तक तुम्हारे रिश्तेदार खातून के ख्वाब का ताल्लुक़ है तो उससे यह जाहिर होता है कि मक्का में एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। ज़माना एक नई सूरत इख्तियार करेगा और आने वाले ज़माने के आसमान व ज़मीन बदल जाएगी। मैं वहाँ से घर चला आया और उसकी सारी बातें अपने दिल में लिए रहा। थोड़ी अरसे के बाद कुरैश के मजलिसों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होने लगा। यह लोग उस बात पर नाक बू चिढ़ाते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को अल्लाह का रसूल कहते हैं, लोगों को बुतों की पूजा से मना करते हैं और एक अल्लाह ताला को मानने पर जोर देते हैं। जल्द ही अल्लाह ताला ने इस्लाम को जाहिर कर दिया और मुझे यकीन हो गया कि हालत वही सूरत इख्तियार कर रहे हैं जिनकी तरफ आसमानी किताबों के आलिम ईसाई आलिम ने इशारा किया था। यहाँ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान ख़त्म हो जाता है। नबूवत के छठे साल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार साथी बन गए। सन 11 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान के पहले खलीफा बने। सन 13 हिजरी में उन्होंने वफ़ात पाई तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। उनके सफ़रनामा की रिवायत करने वाले का बयान है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी खिलाफत के ज़माने में शाम तशरीफ़ ले गए तो एक बहुत बूढ़ा आदमी जिसके बाल बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो चुके थे ईसाइयों की एक जमात के साथ उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर आप शाम के फला गिरजे वाले ईसाई आलिम हैं तो मैं आपको पहचानता हूँ। उसने कहा, जी हाँ, मैं वही ईसाई आलिम हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आपसे लिखकर जो अहद किया था वो अभी तक कायम है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें इज़्ज़त बख्शी। उन्होंने हमें अल्लाह ताला के पसंदीदा दीन इस्लाम की तरफ दावत दी। हमने यह दावत कबूल की। आप ही ने मुझे इन बातों से आगाह किया था।
اب آپ کو کون سی چیز اسلام قبول کرنے سے روکتی ہے؟ بوڑھے عیسائی عالم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر اسی وقت اپنے ساتھیوں سمیت کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ایسی ہی سچی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔